Hello students. Beta, in our previous lecture we started our sixth chapter, If the Well Goes Dry. In that uh, we discussed that this excerpt was written by Al Gore and how he was very concerned for the climatic change pattern, and we also discussed on water's importance and threats. We discussed on two threats in our previous lecture. See on page number 41, para number 5th, from warming oceans are also likely to cause up to becomes even worse, up to the last of the page 41. This is our para number 5th. So we shall discuss on this paras. Here it says warming ocean makes average hurricane more powerful because ocean's top layers depth and warmth determine the hurricane's wind's speed. Now we discuss another threat to the Earth's water system is vast changes in land use pattern. Means another threat for our water distribution cycle is deforestation. In other words, we can say deforestation, and this affects the natural water distribution system. We all know the importance of forests in our lives and also in Earth's life. Forests hold water, as we all know. They themselves produce rain clouds with the evapotranspiration. Now, what is evapotranspiration? First of all, transpiration. Transpiration means the exhalation of water vapor through the stomata. The stomata, we find it in plants. Plants lose more than 90% of their water through transpiration. This is transpiration. Now, what is evapotranspiration? Evapotranspiration is the combination of water that is lost from the soil through evaporation and through transpiration from plants as a part of their metabolic processes. It is an important process in the water cycle because it is responsible for 15% of the atmosphere's water vapor. Without that input of water vapor, clouds couldn't form and precipitation, means rains, would never fall. Now, how rain clouds are produced by forests? Yes, immediately after rain falls on a rainforest, a fine mist means a very dense water vapor begins to float back or come up into the sky. Increase the humidity in the air, and this humidity gets denser and causes more than just downward. Causes more rain just downwards. You know, forests attract rain also. How? They produce gases named terpenes. Terpenes react. What is terpenes? Terpenes, a type of gas. It reacts in the air to form tiny particles called aerosols. These help turn water vapor in the atmosphere into clouds. These are terpenes. So, they produce gases. Who produce gases? Forests. They produce gases named terpenes and small amounts of a compound named dimethyl sulfide. Dimethyl sulfide also helps in making clouds. Dimethyl sulfide, and these float into the atmosphere. Terpenes and dimethyl sulfide float into the atmosphere in the form of gas, and there, in the presence of oxygen, they undergo oxidation process
and these gases are transformed, means are changed into an aerosol. Aerosol is the abbreviation of aerosolution. Short name of aerosolution means aerosol. Aerosol, what are aerosols? Aerosol means liquid droplets in air. So transformed into an aerosol of sulfate particles. These particles act as very small grains. Grains means particles, and droplets of rainwater form around them. This process is same as a pearl type of a jewel, precious, we can say stone, pearl forming process. So this process is exactly like the process of pearl forming. We all know that if the forests are destroyed or cut recklessly, the rains will become less and cannot bring moisture. This is also not good. That if the heavy rains continue for a while where there are forests, they wash away the topsoil. By the heavy rains, nearby areas are also sometimes flood out. This topsoil clogs, means settles into the river, and they get shallower. What? Rivers get shallower, and their capacity to hold water gets impaired, means damaged, and flooding on the banks, river banks gets worsen. Worsen means very bad. So this is a another great threat on our water distribution system and earth also. Now the explanation in Hindi of these paras. बेटा अब ये जो दूसरे थ्रेड की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट थ्रेड की बात कर रहे हैं, वो हमारा है लैंड यूज पैटर्न. अब वो लैंड यूज पैटर्न में जो हम जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज पैटर्न का मतलब हम जिस तरीके से लैंड को यूज़ कर रहे हैं, उस अब लैंड को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जगह जगह वनों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों की, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और वो लैंड को यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं. भले हमें फिर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, मॉल्स बनाने हो, जो भी चीज़, फैक्ट्रीज डालनी हो, तो यहाँ डिफॉरेस्टेशन करते हैं. डिफॉरेस्टेशन, और ये क्या होता है कि इससे नेचुरल जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है. और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी लाइफ के लिए, इवन अर्थ के लिए, ये फॉरेस्ट कितने मायने रखते हैं. फॉरेस्ट पानी को होल्ड करते हैं, हमको पता है. और यहाँ तक कि वो खुद से रेन क्लाउड्स भी फॉर्म करते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन के साथ. अब इवेपो ट्रांसपिरेशन हमने देखा कि यहाँ इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है. ये कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, कि ज़मीन से, सॉइल से जो वाटर लूज होता है इवेपोरेट होके, अब वो इवेपोरेट होके लूज होगा तो ऑब्वियसली वो गैस फॉर्म में ही इवेपोरेट होगा. और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो प्लांट्स से निकलता है, मेटाबॉलिक, उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जैसा हमने अपने साइंस के इसमें सब्जेक्ट में पढ़ा था, मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो वो ट्रांसपिरेशन के रूप में निकलता है. ये उसका कॉम्बिनेशन होता है और उनसे ये गैसेस से फॉर्म होकर ऊपर जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वाटर साइकिल में. क्यों? क्योंकि यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है एटमॉस्फियर के 15% वाटर वेपर के लिए जिम्मेदार होती है. इस इनपुट के बिना, ये इनपुट नहीं होगा, ठीक है, ये इवेपोट्रांसपिरेशन वाला जो इनपुट होता है ये नहीं होगा तो वाटर वेपर्स के जो क्लाउड्स हैं वो नहीं बन पाएंगे. और वो जब क्लाउड्स ही नहीं फॉर्म होंगे तो फिर प्रेसिपिटेशन कैसे होगा? प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल कैसे होगा? तो यहाँ प्रोड्यूस करते हैं रेन क्लाउड्स. अब ये तो रेन को अट्रैक्ट करते हैं, ये ठीक है. रेन क्लाउड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत बाद जहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर से ये इवेपोट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू वो जो एक फाइन मिस्ट होता है, मतलब एक वेरी डेंस वाटर वेपर, वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है बारिश होने के तुरंत बाद. और इसके बाद जैसे ही वो गैस के रूप में ऊपर उठती है तो ह्यूमिडिटी एयर में बढ़ जाती है, आर्द्रता, नमी बढ़ जाती है.
ठीक है। और ये ह्यूमिडिटी वहाँ ऊपर जाकर फिर डेंसर होती है, और जैसे जैसे वो घनी होती है तो वो क्लाउड का फॉर्म ले लेती है, और फिर उससे फिर वापस से बारिश होती है। अब आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट रेन को भी अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ गैसेस फॉर्म करते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं, जिनमें है टर्पीन्स। और टर्पीन्स का काम होता है कि वो टर्पीन्स जो गैस है एयर में जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म करती है, जिनको एरोसोल्स मतलब एरोसोल्यूशन मतलब यहाँ पर वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स बोला गया है, वो फॉर्म करती हैं। और ये हेल्प करते हैं वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में क्लाउड में बदलने में। और इसके साथ साथ टर्पीन्स के साथ साथ डाइमिथाइल सल्फाइड भी थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ये भी हेल्प करता है क्लाउड फॉर्मिंग में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। अब ये दोनों चीज़ें गैस के रूप में ऊपर जाती हैं, क्या? टर्पीन्स और डाइमिथाइल सल्फाइड। अब ऊपर ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये जो गैसेस हैं एरोसॉल में बदल जाती हैं। एरोसॉल मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, एरोसॉल ऑफ सल्फेट पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्स के रूप में काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में काम करते हैं, और इन्हीं के आजू बाजू ग्रेन्स के आजू बाजू इनके चारों ओर रेन वाटर बनते हैं, रेन वाटर डेवलप होते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है जैसे सीप के अंदर एक रेत का छोटा सा कण होता है और उसके आसपास वो सीप मोती बनाने का काम करता है, मोती वैसे ही बनता है सीप के अंदर। तो यहाँ सेम ऐसे ही प्रोसेस होती है रेन क्लाउड फॉर्म होने की, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने की। तो यहाँ हम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फॉरेस्ट रेन को अट्रैक्ट भी करते हैं और रेन क्लाउड्स को फॉर्म भी करते हैं, ठीक है। अब जैसा हम जानते हैं कि फॉरेस्ट हम लोग बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, या उसको बुरी तरह से अंधाधुंध तरीके से काटते जा रहे हैं। जब ऐसा होगा तो अभी हमने देखा कि रेन की उपयोगिता क्या है हमारे लिए, या रेन क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, या रेन को अट्रैक्ट करने के लिए। पर जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो यहाँ रेन कहाँ से होगी? तो ये होगा कि रेन कम होती जाएगी और वो मॉइस्चर नहीं होगा। ये भी एक अच्छी बात नहीं है कि यदि भारी भी बारिश होती है जहाँ जहाँ फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो वो भारी बारिश भी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि तेज़ी से होती हुई बारिश क्या होती है, टॉप सॉइल को बहा कर ले जा लेती है। यानी यहाँ हैवी रेन से क्या होता है, नियर बाई एरियाज़ में बाढ़ की भी स्थिति निर्मित हो जाती है। ये टॉप सॉइल जो बह के जाती है, अब ये कहाँ जमा होगी? ये जाती है रिवर में, तो रिवर में ये जाके डिपॉजिट होने लगती है, जमा होने लगती है। अब रिवर जो गहरी थी, जिसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, अब वो कैपेसिटी कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि रिवर शैलो और उथली होती जा रही है। तो यहाँ उससे क्या होता है कि वो उसके वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी डैमेज हो जाती है, और फिर वो जो किनारे जो होते हैं, नदी के किनारे, उनकी स्थिति खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब नदी में पानी जब होल्ड करने की स्थिति नहीं रहेगी, उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो वो पानी कहाँ जाएगा? किनारों की ओर जाएगा। अब जब वो पानी किनारों की ओर जाएगा तो वो किनारों में रहने वाले जो लोग हैं, जिसके बारे में हम अभी तक बात करते हैं, कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। फिर वो रिफ्यूजीज़ के रूप में वहाँ से भागेंगे और कहीं ना कहीं शरण लेंगे। अब जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी तो फिर वहाँ उनकी पॉपुलेशन उधर साइड की बढ़ेगी। मतलब ये स्थिति सभी के लिए भयावह है, परेशानी वाली है। तो बेटा यहाँ इतना आपको शायद समझ में आएगा कि ये जो थ्रेट है किस चीज़ का, लैंड यूज़ पैटर्न का। ये भी एक हमारा ग्लोब को, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है। यस, अब पेज नंबर 42 पे देखिए, पैरा नंबर 6। फ्रॉम द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू द ग्लोबल वाटर सिस्टम up to directly into the Ganges. Yes, the explanation in English first. Now we will discuss the next threat means contamination, means pollution of water resources with the chemical pollutants which are produced by industries. Our global water system is not like our global atmosphere. Atmosphere is a single reservoir of air, means single storage of air which contains homogeneous mixture.
But global water system contains a number of large reservoirs and stores, and they are not totally mixed with the other water on the earth. In atmosphere, all gases move freely and exist everywhere in the atmosphere. But with the global water supply, it is not true. Water resources are apart from one another. They are not close to each other. In the third world means developing countries, water pollution affects keenly. Because of pollution, there is a high rate of death from cholera, typhoid, dysentery, diarrhea, and these are caused by both viral and bacteriological resources. In these developing countries, more than 1.7 billion people don't have sufficient supply of potable means drinking water. More than 3 billion are at risk of having water polluted and lack of sanitation. Hygiene. Sanitation means hygiene. Now explanation in Hindi of these para. बेटा अब ये जो हमारा नेक्स्ट थ्रेट है हमारे ग्लोबल वाटर सिस्टम को वो क्या है? कंटामिनेशन, मतलब प्रदूषण। प्रदूषण किसका? वाटर रिसोर्सेज का। किसकी वजह से? इंडस्ट्री की वजह से। इंडस्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स है वो कहाँ जाके मिलते हैं? वाटर रिसोर्सेज में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ग्लोबल वाटर सिस्टम है बेटा, वो ग्लोबल एटमॉस्फेयर की तरह नहीं है। एटमॉस्फेयर में तो सभी गैसेस आराम से मूव करती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लैंड की बात करते हैं, ग्लोब की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो आपने देखा होगा वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, वाटर स्टोरेजेस हैं, वो अलग अलग जगह पे दूर दूर मतलब बिखरे पड़े हैं और वो पानी मिक्स भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि ग्लोबल वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम होती है। हम उसको अपने ग्लोबल एटमॉस्फेयर से नहीं उसको मैच कर सकते हैं। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है, वाटर रिसोर्सेज भी बहुत अलग अलग जगह दूर दूर फैले हुए हैं। अब थर्ड वर्ल्ड मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर वाटर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा देश प्रभावित हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन की वजह से कैसे प्रभावित हैं? ये पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि लोगों में कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, जो कि ये वायरल और बैक्टीरियोलॉजिकल डिजीज़ हैं, ये सब होते हैं। इसकी वजह से यहाँ के डेथ रेट काफ़ी हाई है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। इवन यहाँ लोगों को ऐसे डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों को सफिशिएंट पीने लायक पानी भी नहीं मिल पाता है और इनमें स्वच्छता का भी अभाव होता है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है, वाटर पोल्यूशन अलग होता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है हमारी पृथ्वी पर। किस चीज़ का? ये प्रदूषण। किस चीज़ का प्रदूषण? बहुत सारे तरीके की प्रदूषण है, लेकिन यहाँ हम अब चूँकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो वाटर रिसोर्सेज का जो कंटेमिनेशन है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। Yes, now the seventh para from the pressure of rapid pollution growth up to without thought for the future. Explanation of these paras. The last threat is highly growing population. It is especially in the third world, means developing countries. They are posing a great danger and pressure on global water system. In many regions of the world, groundwater is being extracted, means taken out from aquifers. Aquifers means here we can say boring, hand pumps, wells, etc., tube wells, etc., at very high speed. But nature has its capacity to refill or recharge. These underground reservoirs or storages are out of our sight, means at an underground we cannot see, so they are out of mind also. When they start to dry up or sink or subside, then we get to know or we wake up many rivers are sinking by inches
every year. Here some people expect that desalination plants may cheap to provide water may become cheap to provide water to poor countries. Means they hope that salty water, means sea water, can be desalinized, means made saltless by the process, and this process will be cheaper someday. But this is not possible because it will take a lot of energy, carbon dioxide cost, it is needed, and it is not affordable for all countries. Some say that icebergs, means large pieces of ice, can be towed with rope towed with rope, but and pulled from the polar regions to the populous tropics, means where their people live. It is also impossible as it is not affordable. So what to do? We need to lasso our common sense. Means we need to use our common sense. We know very well that the rain brings trees, flowers, etc. And on the contrary, droughts bring cracks in the world. Lakes, rivers make us survive. So we must take care that they flow back out as pure as came. We should not poison or pollute them. We should think of the future. Yes, explanation in Hindi. बेटा अब आखिरी जो थ्रेट है हमारी ग्लोब को या हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, वो क्या है? वो ये है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, स्पेशली जो तीसरा विश्व, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये एक तरह से प्रेशर डाल रहा है या एक तरह से खतरा है ग्लोबल वाटर सिस्टम के लिए। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में क्षेत्र हैं जहाँ से पानी जो अब यूज़ का पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है। अब वो ग्राउंड वाटर क्या हो सकता है? बहुत सारे वेल्स, ट्यूबवेल्स, बोरिंग्स करवाई जाती हैं आजकल तो, है ना, क्योंकि अब नदियों की भी स्थिति हम देख रहे हैं कैसी होती जा रही है। अब ये सब ज़रूरी होते जा रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो अब ये डिमांड की सप्लाई कहाँ से होगी? तो हम लोग अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने में लगे हैं, और इतनी तेज़ी से कर रहे हैं जितनी तेज़ी से तो नेचर उसको रिफ़िल भी नहीं कर पाती, रिचार्ज भी नहीं कर पाती है। तो उसको ये सब रिचार्जेबल हैं, लेकिन इनके रिचार्ज होने की भी तो एक प्रोसेस है और वो एक साइकिल है। वो साइकिल होने में भी कुछ टाइम लगता है। अब ये टाइम हम इतनी तेज़ी से पूरा अपने पॉपुलेशन के लिए, अपनी जनसंख्या के मांग की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो इसमें वक्त तो लगेगा। अब वो वक्त तो नेचर के पास है नहीं। अब ये क्या होता है कि हमारे आँख से भी दूर होता है, नीचे अंडरग्राउंड में हमको दिखता नहीं है। जब वो पूरी तरह से सूख जाएगा, पूरी तरह से तलछट आ जाएगी, जब हमें समझ में आता है कि भाई यहाँ तो पानी खत्म हो चुका है, ठीक है। और ऐसे ही हो रहा है कि कई नदियाँ इंच दर इंच सिकुड़ती जा रही हैं, यहाँ पर सिंक होती जा रही हैं। अब ये कई लोगों का ये मत है, कई लोग ये मानते हैं कि डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा भी तो हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। डीसैलिनाइजेशन मतलब जो सी वाटर है, हम उसको न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका नमक अलग करके उसको पोर्टेबल वाटर में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये बोलने की बातें इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि उसमें जो लागत लग रही है, उसमें जो टेक्नोलॉजी लग रही है, हर किसी के अफोर्ड करने की बात नहीं है। तो ये चीज़ उसी तरह से हो गई कि कई लोगों का ये भी मानना है कि जितने भी पोलर रीजन्स हैं, अंटार्कटिका के आइस कैप्स हैं, उसको टो करना मतलब यहाँ पर वो रस्सी में बांध करके नीचे लेके आना, पुल करना, तो वो बर्फ़ से भी हम पानी को बना सकते हैं। तो ये भी चीज़ उतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो लागत लगने वाली, कॉस्टिंग आने वाली है, जो एनर्जी चाहिए, वो अभी तो फ़िलहाल में अफोर्डेबल नहीं है। तो अब इसके लिए करें क्या? हम लोग तो तेज़ी से पानी भी यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट को भी कट करते जा रहे हैं, पूरा इम्बैलेंस मचा के रखे हैं। तो यहाँ पर
अब किया क्या जाए, इसमें करना यह है कि वो जो लासू करने की बात है कि लासू करके लेके आए अपन आइसबर्ग्स को, उसकी बजाय हम अपने कॉमन सेंस को लासू करें, यानी टो अप करें, मतलब अपने कॉमन सेंस को यूज़ करें और हम ये जानें कि हमारे लिए पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं, हमको सर्वाइव करने के लिए कितने ज़रूरी हैं। हमको ये समझ में आना चाहिए कि पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, और ये सूखा जो है पूरे वर्ल्ड में क्रैक्स लाता है। सूखे की वजह से हमने देखा दरारें होती हैं, है ना, अकाल पड़ता है, दरार ज़मीन में दरारें हो जाती हैं, ज़मीन फर्टाइल नहीं रह जाती है। पानी ज़रूरी होता है और पानी के लिए तो हमको फॉरेस्ट जो होल्ड करके रखते हैं वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ हमको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्योरिटी से हमको पानी प्रकृति दे रही है, हम उस पानी को उसी प्योरिटी के साथ उसको वापस करें, पर हम वैसा कर नहीं रहे हैं, हम उसको पूरी तरह से पॉल्यूट करके वापस भेज रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसको पॉइजन करके भेज रहे हैं। हमको अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर जनरेशन के फ्यूचर के बारे में भी ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। और जितना भी हमको ये जल मिल रहा है जो हमारे लिए अभी फ़िलहाल में सफिशिएंट है, उसको हम उसी वे में प्रकृति को वापस करें जिस वे में हमको प्रकृति शुद्ध रूप में दे रही है, उसको पॉइजन न करें। तो इसमें हमारा अभी सिर्फ कॉमन सेंस काम आ सकता है। हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए ह्यूमन बीइंग को कि हम किस तरीके से अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। बेटा यहाँ पर अब आपको शायद शीर्षक से, टाइटल से इफ़ द वेल गोज ड्राई कंडीशन रखी गई है कि यदि कुआं सूख जाए तो सोचिए क्या होगा यदि पानी ही न हो हमारे पास, क्योंकि पानी तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे लिव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं बिना पानी के तो हम रह ही नहीं सकते। कितने स्लोगन बने हुए हैं जल संरक्षण के लिए, जल बचाओ, जल जीवन है, जल है तो कल है, दुनिया भर के। तो यहाँ पर हमको ये सब चीज़ें समझने की, हम मतलब ह्यूमन बीइंग को, और ये पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, इनको समझने की ज़रूरत है। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर पैरा वाइज, पैरा बाय पैरा। ओके, so we shall start our next topic, next lecture, whatever it may be. Till then, bye, thank you.